Hello student, today discuss some important topic for JEE Mains plus advanced. Nature of roots of quadratic equation. Let's quadratic equation. Nature of roots. इसमें JEE मेंस प्लस एडवांस में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. JEE मेंस प्लस एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस स्टेट लेवल के जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम उसमें से भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं. इसे हम पहले समझेंगे. लेट quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0 and a comma b comma c belongs to real number. These are condition of quadratic equation. A not equal to 0 and a b c are belongs to real number. तो नेचर ऑफ रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके टू रूट्स होंगे. लेट्स अल्फा एंड बीटा. दिस गिवन इक्वेशन आर टू रूट्स. लेट्स अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा एंड बीटा की नेचर बताने. नेचर तो नेचर डिपेंड अपॉन डी. डी व्हाट इज डी? डिस्क्रिमिनेंट. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो जो नेचर ऑफ रूट रहते हैं डिपेंड अपॉन डी. तो डी का पॉसिबिलिटी डी इक्वल टू 0 या डी नॉट इक्वल टू 0. हाउ टू एक्सप्लेन? डी का दो केस अराइज हो रहे हैं. डी इक्वल टू 0 डी नॉट इक्वल टू 0. डी इक्वल टू 0 इस केस में क्या होंगे रूट्स? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. lie alpha equal to beta equal to minus b by a. In the case of d not equal to 0, lie two cases arise. D less than 0 and d greater than 0. What is the meaning of d less than 0? Roots are imaginary. Roots are imaginary. Roots are imaginary. Imaginary roots always come in pair. If one roots are given, let alpha plus I beta. अगर एक रूट गिवन है तो अनदर रूट ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? अल्फा माइनस आई बीटा. दिस इज इमेजिनरी रूट. इन द केस ऑफ डी ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल होंगे पर अलग होंगे, डिफरेंट होंगे. In the case d greater than 0, d greater than 0, in this case two case also है. First is d is perfect square. D is perfect square and a comma b comma c belongs to rational q. What is q? Is rational number. Then
then roots are rational and different. Yeah, different. D is not perfect square. D is not perfect square. And A comma B comma C belongs to Q. Then roots are irrational. Irrational root always come in pair. Like if one root is P plus under root Q, then another root is P minus under root Q. If alpha and beta be the roots of quadratic equation, then required quadratic equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0. This is a required quadratic equation. Take some example. जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़े उसे अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम में. कैसे अप्लाई करेंगे? एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द quadratic equation with rational coefficient. When one root is 1 by 2 plus root 5. 2 plus root 5. Roots are irrational. Given roots are irrational, the roots are irrational. Let alpha equal to 1 by 2 plus root 5. Then simplify. Cross multiplying root 5 minus 2. We rationalize. A plus B into A minus B. Root 5 minus 2 by 5 minus 4 is equal to root 5 minus 2. So alpha is root 5 minus 2. Then beta is irrational root always come in pair. So root 5 minus 2. So beta is minus root 5 minus 2. So alpha plus beta is equal to root 5 minus 2
plus minus root 5 minus 2, root 5 cancel is minus 4, and अल्फा इंटू बीटा माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट 5 माइनस 2, एंड यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो रूट 5 प्लस 2, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, बट साइन क्या है यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ, तो माइनस 1, सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 1, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस, तो माइनस माइनस गेट प्लस 4x अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with rational coefficient. Coefficient is x square coefficient 1, x का coefficient 4, and this is minus 1 is a constant. Take another example. Form a quadratic equation with real coefficient when one root is 3 minus 2i. 3 minus 2i is complex number, means imaginary root. Imaginary roots always come in pair. Complex roots always occur in pair. Let alpha is equal to 3 minus 2i, then beta is equal to 3 plus 2i. So alpha plus beta ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, एंड अल्फा इंटू बीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9, माइनस आई का स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 4 कितना हो जाएगा 13. रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. So x square minus alpha plus beta 6x plus 13 equal to 0. This is the answer. Take another example. If the equation 2x square plus 4xy plus 7y square minus 12x minus 2y plus t equal to 0, where t is the parameter that has exactly one real solution of the form x comma y, find the value of x plus y.
गिवन इक्वेशन जो है वो x की फॉर्म में रियल रूट दे रहे हैं और y का भी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है उसमें भी रियल रूट दे रहे हैं. t is the parameter. Exactly one solution. What is the meaning? How to proceed? Exactly one solution. Exactly one solution means रिप्लाई क्या कर रहा है, d इक्वल टू जीरो. d इक्वल टू जीरो होता है तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है, मतलब दोनों जो रूट होते हैं इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे d इक्वल टू जीरो. दिस इक्वेशन फॉर्म इन वेरिएबल x और y. 2x स्क्वायर प्लस 4y and x is here minus 12x comma left plus 7y square minus 2y plus t equal to 0. With compare in general equation ax square plus bx plus c equal to 0. Here this is c treated as c is b a. So d equal to 0. D equal to 0. These are given. Exactly one real solution. B square 4y minus 12 whole square minus 4a c 7y square minus 2y plus t equal to 0. Let's simplify. Here 4 common means 16. यहाँ से 4 कॉमन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4 का स्क्वायर लेफ्ट y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस t इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप 4 स्क्वायर इज 16. हेयर 8 तो यहाँ से 8 कॉमन हो जाएंगे तो लेफ्ट कितना बचेंगे 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 8 हेयर कॉमन लेफ्ट मल्टीप्लाई 7y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y माइनस t इक्वल टू 0. एट इज होल इन कॉमन, 8 से हम डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आ जाएंगे. 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट क्या बचेगा 8 को हम यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 8 यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये फिर यहाँ से 8 कैंसिल. लेफ्ट क्या बचेंगे 2y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 18 माइनस 7y स्क्वायर प्लस 2y माइनस t. 2y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज माइनस 5y 7y माइनस 5y स्क्वायर. 2y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर 12y माइनस 10y प्लस 18 माइनस t इक्वल टू 0. टेक माइनस कॉमन तो 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस t माइनस 18 इक्वल टू 0. Here C A. Again, this is also in quadratic equation in by. Quadratic equation in variable by, but given is exactly one solution in the form of x, y. x की क्वाड्रेटिक बनेंगे तो भी 0 आएंगे exactly one solution, और y का भी फॉर्म में बनाएंगे तो भी exactly one solution होगा. मीन्स यहाँ पे y का फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो यहाँ भी जो y का फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो यहाँ पे भी d इक्वल टू क्या होगा 0. तो d इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या लगाएंगे it treated as b is c and here a. तो b स्क्वायर माइनस 4 is c. 100 माइनस 4 into 5 c t माइनस 18 इक्वल टू 0.
here common 20 common, तो क्या 5 माइनस t माइनस 18 इक्वल टू 0। 20 से डिवाइड देंगे क्या बचेगा 5 माइनस t प्लस 18 इक्वल टू 0। here t इक्वल टू 23। दिस t वैल्यू ऑफ t पुट इन इक्वेशन, इसमें हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या आएगा 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 23 माइनस 18 इक्वल टू 0। सो 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5 इक्वल टू 0। here 5 कॉमन, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाई y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर y इक्वल टू -1। अब इसे हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे y इक्वल टू -1 एंड t इक्वल टू 18, t इक्वल टू 23 एंड y इक्वल टू -1। पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन। यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये जो x में है यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। पुट करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर 4y, y इक्वल टू -1, -16x 7y स्क्वायर 7 और 2 9 और प्लस 23 9 प्लस 23 32। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन आया अभी 2x square minus 16x plus 32 equal to 0. Here 2 is a common. 2 so x square minus 8x plus 16 is also equal to 0. X square minus 8x plus 16 equal to 0. X minus 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाई x इक्वल टू 4. नो फाइंड रिक्वायर्ड x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 4 प्लस y इक्वल टू -1 सो 3. रिक्वायर्ड आंसर x प्लस y इज इक्वल टू 3. थैंक यू.